جو موسم ہے وہ چینج ہوا اور گرمی کی شدت جو ہے وہ ٹوٹی ہے اور ٹھنڈک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو موسمی وبا ہے جو آنکھوں کی تعلق سے بہت سارے لوگ اس آنکھوں کی وبا سے جو ہے بہت سارے لوگ نہیں آ سکے اور کچھ بیمار بھی ہیں، لیکن تو بھی خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں ہر حال میں سنبھالتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور آج ہم کلام مقدس میں سے ہم آج سیکھیں گے کہ ہم یسوع مسیح پر کیوں ایمان لائیں، ہم خداوند یسوع مسیح پر ہم کیوں اپنا ایمان لے کر، اس لیے کہ اس نے آپ کو گناہ آلودہ فطرت کی گرفت سے اس نے ہمیں آزاد کیا۔ ایک موقف ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں کی جو گرفت تھی ہمارے اوپر، ہمارے باپ دادا سے، اس نے ان گناہوں سے ہمیں آزاد کیا جو آپ نے ماضی میں کیے، جو ہم سب نے گزرے ہوئے وقتوں میں جو ہم نے گناہ کیے، خداوند یسوع مسیح نے ان سے ہمیں آزاد کیا اور آپ کو نئی زندگی اور خدا باپ کے ساتھ ایک ابدی تعلق اس نے ہمیں مہیا کر دیا ہے۔ آپ دنیا کے درد اور دکھ کو کم کرنے میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا ملاپ خدا سے ہو چکا ہے، یسوع سے روزانہ دعا کریں کہ وہ آپ کو دنیا میں خدا کی بادشاہی پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ بڑی بات ہے کہ ہمیں نہ صرف ہمیں خود اپنے لیے بلکہ اوروں کے بھی دکھ درد کو کم کرنے کے لیے ہمیں استعمال ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے دکھوں کے اندر، ان کی مصیبتوں میں، ان کی بیماریوں میں، ان کی دعا کے ساتھ، ان کی تمام جو زندگی ضروریات ہے، ہمیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہماری مدد کی ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ شفا، آزادی اور راست بازی کی بادشاہی ہے، جب اس کی بادشاہی بھرپور آئے گی تو خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا اور نہ درد، کوئی بھی چیز زندگی کے اندر نہیں رہے گی۔ میں آج کلام مقدس میں سے خدا یسوع مسیح نے جو ایک تمثیل بیان کی، ایک دولت مند آدمی کی اور ایک لازر غریب کی زندگی کے اوپر، آج ہم اس تمثیل کے وسیلے سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں کیسے بتانی ہیں۔ آج گیت گا رہے تھے، بول میرے نل، بول میرے نل پاک روح، کہیے خداوند آج اس تمثیل کے وسیلے سے مجھ سے بول اور مجھ سے کلام کر اور مجھ کو بتلا کہ تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج پھر خداوند سے ہم نے کہا، آپ نے مانگا کہ خداوند کیا کرے، آج اس تمثیل کے وسیلے سے ہم سے بولے اور ہم سے کلام کرے۔ ہمیں اس تمثیل کو میں جب پڑھوں گا اپنے غور سے سننا ہے۔ بچوں آپ نے دھیان رکھنا ہے اس بات کے لیے بھی، جو تمثیل ابھی پڑھی جائے گی اس پر کیا کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، اپنے دل میں
बिठाने की कोशिश करें इसको। जैसे दाऊद ने इस कलाम को अपने दिल में बिठाया और उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। और जब आप इस कलाम को, मेरा ईमान है कि वो आज आपसे बोलेगा, आज आपसे कलाम करेगा, और जब इस कलाम को आप अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, तमाम बीमारियां, तमाम रोग, तमाम बंधन छुए वो आपकी जिंदगी के अंदर से टूट कर गिर जाएंगे। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। टूटेंगे, गिरेंगे, परेशानियां वो सब आज जाएंगे कलाम मुकद्दस के बोलने से, जब आप उसे रिसीव करेंगे। तो सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील और उसके 16 बाब और उसकी 19 आज से लेकर कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए 30 तक। कलाम में यूं लिखा है कि एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, मगर कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। हमने कलाम मुकद्दस में एक दौलतमंद की जिंदगी के बारे में बयान पढ़ा। दौलतमंद ऐसा, वो अच्छे कपड़े पहनता, लिखा है अरगवानी ड्रेस, महीन कपड़े पहनता, अच्छा सेहतमंद, पैसा रुपया दौलत, ना कोई बीमारी ना कोई दुख, कोई भी ऐसी चीज उसकी जिंदगी के अंदर नहीं। पैसा रुपया बहुतान से, खाने पीने के लिए बहुत कुछ, रहने के लिए घर अच्छा, हर दुनिया की आराइश उसके पास, बड़ी आराम की वो जिंदगी बिता रहा था। कलाम के अंदर लिखा है कि वो, लेकिन हमें एक और तस्वीर जो खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील के अंदर दिखा रहे हैं कि उसके मुतबादल एक और शख्स लिखा है कलाम में, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा उसके दरवाजे पर डाला गया, और उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। हमने देखा कि एक गरीब आदमी कहां उस अमीर के घर के सामने उसे डाला गया। खुदा कह रहा है कि डाला गया। वो बीमार, वो गरीब, वो भूखा, वो नंगा और जख्मों से भरा हुआ। लिखा है कि उसे क्या एक आरज़ू थी, उस दौलतमंद की तरफ देखता था, उसके घर की तरफ देखता था, उसके दरवाजे की तरफ देखता था, उसकी शान और शौकत को वो देखता था, उसके अच्छे ड्रेस कपड़ों को पहनना ओढ़ना वो सब कुछ देखता था। और लेकिन क्या उसके अंदर एक आरज़ू थी कि काश इसके घर से मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन कलाम के अंदर कि वो वहां से शायद उसकी टेबल से उसको नहीं मिलता था, लेकिन उसे ये आस थी कि चलो उसके जो गिरे हुए टुकड़े हैं उनमें से ही मुझे कुछ मिल जाए। उन टुकड़ों में से कि वो जो फेंक देते हैं कूड़े के अंदर, ऐसा ही है लिखा है। तो उनसे क्या कुत्ते भी आकर खाते थे, तो क्या कहते थे चलो ये भी चीज हो गए, इसी के अंदर से वो खाने को से मिलता था, वो खाता था। लिखा है और उसके जख्म, बीमारी, रोग ऐसे थे कि लिखा है कि उसके जख्मों को कुत्ते चाटते थे, नासूर थे। अब ये सारी लाइफ दोनों की गुजर रही थी,
अमीर आदमी ऐश कर रहा था, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई तंगी नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन लाजर जो है वो बीमारी के अंदर, रोग के अंदर, मजबूरियों के अंदर फंसा हुआ, गिरफ्त हर तरह से, खौफ उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर दहशत, उसकी ज़िंदगी के अंदर हर वेले ये कि पता नहीं कब मुझे मौत आ जाएगी, कब मैं मर जाऊंगा। इसी खौफ के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा था। हुआ क्या? कलाम में लिखा है कि ऐसा हुआ कि गरीब मर गया, गरीब आदमी मर गया। वो अपनी बीमारी से मर गया, वो अपनी भूख से मर गया, अपने दुखों से मर गया, अपनी तंगी से मर गया। लेकिन क्या है? मौत तो आनी है, हर एक ने एक दिन जरूर मरना है। मरने का दिन याद रखना चाहिए कि हम कैसी मौत मरेंगे, कैसा। यहाँ जो हमें सिखाया गया, जो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील में बयान किया कि उस लाजर ने जो दुख उठाए, जो बीमारी, उसको अफसाना एक जो मिला, वो कलाम मुकद्दस में मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, सुनिएगा। ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें खोली, उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को देखा। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि गरीब आदमी भी मरा और अमीर आदमी भी मर गया। दोनों मर गए, लेकिन दोनों मुख्तलिफ जगह पे गए। यहां भी उनकी मुख्तलिफ जगह थी, नीचे भी जमीन पर, लेकिन जब वो मरे तो दोनों ही अलग अलग जगह पे गए। यहां भी वो एक दूसरे को देखते थे, वो एक दूसरे के कामों को देखते थे, वो उनकी एक दूसरे की जरूरतों को देखते थे, एक दूसरे की मजबूरी को वो देखते थे। लेकिन सब कुछ देख तो रहे थे, लेकिन वो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, कुछ करते नहीं थे। लेकिन यहाँ जो हम कलाम मुकद्दस में देख रहे हैं कि क्या हुआ कि जो अमीर आदमी है उसने देखा कि ये क्या, कि मैं तो उस जहन्नम के अंदर जहां आग है, जहां दुख है, जहां बीमारी है, जहां रोग है, जहां हमेशा की आग जलती है, उसके अंदर मैं तड़प रहा हूं। और लाजर जो मेरी बेसिक गिरे हुए टुकड़े खाता, मेरे पास रहता था, ये क्या? ये इब्राहिम की गोद के अंदर आराम से एक बड़ा, उसने उस वक्त फैसला लिया जो शायद बड़ी देर हो चुकी थी, बड़ी देर हो गई थी। जो कलाम के अंदर लिखा है, ये बड़ा फैसला कलाम के अंदर लिखा है कि क्या हुआ, और उसने पुकारा कर कहा, है बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं आग में तड़पता हूं। हमें समझ आ रही है कि जब यहां से हम कूच करेंगे, आसमान पर होंगे, तो हम फिर बाप इब्राहिम को भी देखेंगे, और फिर हम
खुदावंद यीशु मसीह को भी देखेंगे, जो सदियों पहले जिन्होंने मौत और कब्र पर पता पाया था, सलीब पर हमारी पता का डंडा बुझा दिया, उनको भी हम देखेंगे। उन्होंने वहाँ पर ये देखा, उन्होंने देखा इब्राहिम को, उन्हें देखा और पुकार कर कलाम के अंदर लिखा है कि क्या कर, कि लाजर से क्या है कि अपनी उंगली का पोटा जो है वो डुबो के कह के मेरी जुबान पर रख दे, ताकि मुझे सुकून मिले। मेरे अंदर जो जलन है, बीमारी है, रोग है, क्या मैं उससे मैं राहत, मैं सुकून पा जाऊं। मैं जो आग में तड़प रहा हूं, मैं उससे रिहाई पाऊं। इब्राहिम ने उसे जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। याद रखिए, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। बुरी चीजें वो कलाम के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो लाजर ने दुख उठाया, तो लाजर ने बीमारी को बर्दाश्त किया, लाजर ने गरीबी को बर्दाश्त किया। वो चीजें जमीन पर आज अगर आप उनमें से गुजर रहे हैं तो फिर इन चीजों की, जो चीजें आसमानी बाप आसमान पर देने वाला अजर है, वो यहाँ पर दर्ज है, वो यहाँ पर बयान की गई है कि इब्राहिम ने कहा, बेटा याद रख, तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। जान देने तक भी वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये लाजर की वफादारी थी जमीन पर और उसकी वहाँ पर ऐश थी। और कलाम में अगर हम आगे और बढ़े तो कलाम कहता है कि वो कहने लगा, और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है। एक बड़ा गड़ा वाकया है जो कलाम के अंदर बयान किया गया कि अब ये जहन्नम है, ये दोज़ख है, ये जहन्नम है, ये फरदौस है जिसके अंदर लाजर रह रहा है, और अमीर आदमी जहन्नम की आग के अंदर सड़ रहा है। और इब्राहिम उसे कहने लगा कि अब ये ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि तू इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये यहां से यहां नहीं आ सकता और ये वहां से यहां पर नहीं जा सकता। ये गड़ा अब वाकया है, ये फैसला हो चुका है। अमीर आदमी ने कहा कि ऐ बाप, चूंकि मेरे भाई मेरी बहनें जितने नीचे जमीन पर हैं, उनके पास तू लाजर को भेज ताकि वो जाकर उनको बताए कि मेरा यहाँ क्या हाल है, मैं यहाँ तड़प रहा हूं, मैं यहाँ आग में हूं और ये लाजर आराम से तेरी गोद में है। कहने लगा कि इसको भेज। उसने कहा, इब्राहिम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन पर नबी हैं, जमीन पर रसूल हैं, जमीन पर उस्ताद हैं, जमीन पर चरवाहे हैं, मुबश्शिर अंजील हैं, उनकी वो सुने। आज जरूरत इस बात की है कि हम जो जमीन पर हैं
हमें भी कलाम मुकद्दस को सुनना है, हमें उन नबियों की बातों को सुनना है, हमें रसूलों की बातों को सुनना है, हमें चरवाहों की बातों को सुनना है, हमें मुबश्शिर इंजील को सुनना है कि वो जो कलाम मुकद्दस में आज बयान किया गया है कि लाजर की जिंदगी के बारे में, वो हमें आज सुनना है। उसने कहा कि उनकी सुने, उनकी आवाज को। आज हमारे पास भी और कोई मौका नहीं है, क्योंकि वहां पर फैसला हो चुका है, वहां पर फैसला हो चुका है। आज हमें क्या करना है? उन नबियों की बातों को सुनना है, उस कलाम के भेद की बातों को हमें सुनना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में इब्राहिम ने उससे कहा, इसके पास मूसा है, अंबिया हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, अगर कोई मुर्दों में से उसके पास जाए तो तौबा करेंगे। उसने उनसे कहा, जब मूसा और नबियों की नहीं सुनते, अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी नाम सुनेंगे। आज बड़ी गंभीर ये बात है कि बहुत सारे लोग नहीं सुनते, वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि जहान की आंखों ने उन्हें अंधा कर दिया है। वो ऐसे हैं कि अंधे हैं, वो देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, और कलाम को भी सुनने के बावजूद वो अपनी जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल नहीं लेकर आ रहे। कलाम मुकद्दस की ये भेद की बातें आज मैं समझता हूँ हमारे लिए एक अजीब तौर पर नहीं, हमारे लिए जिंदगी लेकर आ रहे हैं। कलाम मुकद्दस में मैं जब कलाम में से पढ़ रहा था, मरकज की इंजील और उसके 10 बाब के अंदर और 24 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बातें की, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों ने उससे बातें की और हैरान हुए, और यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनका खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनका खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। वो दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं? मुश्किल से हो सकते हैं। वो मुश्किल से दाखिल हो सकते हैं। कैसे? उनका खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। खुदा यीशु मसीह ने एक कहावत तमसील कही, कहने लगे कैसे? कहने लगा, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है। ऊंट का सुई के नाके के अंदर से गुजर जाना क्या है? आसान है। लेकिन किसका? दौलतमंद का उसमें से गुजरना मुश्किल है। वो गुजरेगा लेकिन मुश्किल से गुजरेगा। खुदा यीशु मसीह ने जब ये तमसील को बयान किया और उन्होंने यरूशलेम के अंदर एक बड़े दरवाजे की उन्होंने मिसाल दी, जैसे ये दरवाजा है हमारा और इसकी ये बड़ा दरवाजा और इसके साथ एक छोटा सा दरवाजा लगा। बड़ा दरवाजा जब खुलता तो उसके अंदर से बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे और मुसाफिर, बड़े बड़े जानवर, वो सब इकट्ठे गुजरते थे। लेकिन शाम के टाइम वो दरवाजा बंद कर दिया जाता और एक छोटा जो दरवाजा है, जैसे बड़े बड़े घरों के गेट होते हैं उनके साथ एक छोटा गेट होता है जिसके अंदर से बाहर और अंदर आया जाया करते। वो दरवाजा जो है वो खुला होता और उसके अंदर से ऊंट जो है गुजरते, लेकिन खड़े होकर नहीं गुजरते थे, लेकिन वो बैठकर और घसीट कर आराम से, और फिर उनको सोटियाँ भी पड़ती, डंडे पड़ते, और फिर वो उस दरवाजे के अंदर से गुजरते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने उस दरवाजे को देखते हुए कहा कि हाँ, अमीर आदमी गुजर सकता है, लेकिन ऐसे ही जैसे
ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में जाना। आज ज़रूरत है इस बात की कि हमें आज फैसला लेना है कि क्या हम खुदा की बादशाही में कैसे गुजर रहे हैं। हम खुदा की बादशाही में लाजर की तरह आराम से दाखिल हो या उस अमीर आदमी की तरह हम सूटियाँ खाते, बीमारियाँ, रोग, करब है, सताए जाने, मारे कूटे, बंधन हैं, जुए हैं, रुकावटें हैं, किस तरह हम दाखिल हो गए, किस तरह दाखिल हो गए। आज बड़ा फैसला मैं कहता हूँ कि हमें लेने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि हम इस बात के लिए हम क्या करें, एक बड़ा फैसला लें। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ आप सब मिलकर हम दुआ करें इस फैसले की कि खुदावन मेरी जो ज़िंदगी है वो जो ज़मीन पर मैं गुजार रहा हूँ वो कैसी, क्या उस अमीर आदमी की तरह है जो अनहुआनी चोबे पहनता है, जो अच्छी मेज़ पे खाना खाता है, जो आराम से ऐश की ज़िंदगी बिता रहा है, वैसा हूँ मैं, या मैं मेरी ज़िंदगी लाजर की तरह है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, या ऐसा हूँ तीसरा शख्स कि मैं क्या खुदा की बादशाही में दाखिल तो हो रहा हूँ, मैं चर्च तो आता हूँ, मैं इबादत पर तो जाता हूँ, मैं कलाम को पढ़ता हूँ, लेकिन किसी दाखिल तो हो रहा हूँ, मैं कैसे मैं दाखिल। आज हमें ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले हैं, उन फैसलों में से हमें आज फैसला करना है कि मैं कौन सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं घसीट कर जा रहा हूँ, या मैं लाजर की तरह और या उस अमीर आदमी की तरह जो आगे में पड़ा और वो तड़पे। आज फैसला है, आज फैसले की घड़ी है। आइए मेरे साथ अपने घड़ियों पर खड़े हो जाए और मेरे पीछे सब आप मिलकर दुआ करेंगे। आपके लिए मेरे पास दुआ है ताकि आप इकरार करो, आप दुआ करो खुदावंद के आगे, ताकि हम फैसले में जाएं कि हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घसीट के हम खुदा के घर में जा रहे हैं, घसीट के जी दुआ कर रहे हैं, या लाजर की तरह फख्र के साथ हम इब्राहिम की गोद में बैठे। हालेलुया। आए दुआ करें, मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। आसमानी बाप, मैं तस्लीम करता हूँ मैं एक गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह मुझसे तू जुदा कर दे। मेरा ईमान है यीशु के लिए सलीब पर हुआ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ और वो मुर्दों में से जी उठा। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ कि यीशु खुदावन, मैं अपने सब गुनाहों से तौबा करता हूँ और हर उस राब्ते से ताल्लुक तर्क करता हूँ जो मैंने अरातन गैर अरातन गुनाह और अबलीस से किए। ऐ यीशु, मैं दुआ करता हूँ तू मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और मेरे रवैये को दुरुस्त कर जो तेरी फितरत और मिजाज के मुताबिक नहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि रूह कुद्दस के ज़रिए से अपने फजल और कुव्वत के मुताबिक खुदा की राह में चलने के काबिल बना। आमीन। आइए सब हम दुआ करें। खुदा का रूह आपको जैसे उभारे, आप अपने होंठों को, अपने लबों को खोलिए, हाथों को भी,
اور آپ نے اقرار کیا ہے, آپ دعا کریں اس لیے کہ اس نے